عمران خان سچویشن جو ہے جس طرف جا رہی تھی وہاں سے اس نے رخ بدلا ہے اور اس کے پیچھے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. یعنی اگر آپ گزشتہ 15 سے 20 دن کا جائزہ لیں تو چیزیں جا رہی تھی مذاکرات کی طرف, چیزیں جا رہی تھی حل ہونے کی طرف. عمران خان کی رہائی کے معاملات طے ہو رہے تھے اور عمران خان صاحب کو کچھ آفرز بھی کی جا رہی تھی. اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب, ان کی بہنیں یا ان کی پارٹی کے باقی لوگ, وہ سارے لوگ اب کھل کر کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آفرز کی گئی اور انہیں ڈیل آفر کی گئی. پھر عمران خان صاحب, آپ کو اس بات کا آئیڈیا پہلے سے ہو چکا ہوگا کہ وہ بھانپ لیتے ہیں وقت آنے سے پہلے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. یعنی انہیں پاکستان کی سیاست کی جتنی سمجھ بوجھ ہے, اس حوالے سے انہوں نے جتنے بھی اس سے پہلے تخمینے لگائے یا جتنی بھی انہوں نے پیشن گوئیاں کی, وہ ساری درست ثابت ہوئی. ایک ایسے وقت میں عمران خان صاحب کا ایک بڑا سخت ٹویٹ آ جانا اور اس میں وزیر اعظم کو آرمی چیف کا اردلی قرار دینا, یہ اشارہ دے رہا تھا کہ معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان کے میڈیا کو, پاکستان کے تجزیہ کاروں کو, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو, ایون جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, انہیں بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ بیک ڈور چینل پہ ہوا کیا ہے. اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جتنے بھی مورے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے, جتنے بھی مورے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے پروپیگنڈا کی ایک نئی وار شروع ہونے جا رہی ہے. اب آپ بڑے سخت جملے دیکھیں گے, بڑے سخت بیانات دیکھیں گے, بہت سارے جو ہے وہ ٹاؤٹس وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت بیانات آئیں گے. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 3 ہفتے کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر بغیر شرائط کو منوائے چھوڑ دیا گیا تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا, یا امریکہ کی کچھ مخالفت لے لی جائے تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا. دیکھیں اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر پاکستان کو زیادہ نقصان تو اس بات کا ہے کہ پاکستان کے خارجی تعلقات مغربی دنیا سے خراب ہو جائیں. لیکن اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات کو نارملائز نہیں کیا جا سکتا یا عمران خان کو اپنی شرائط پہ نہیں لایا جا سکتا تو پھر اجارہ داری کے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا. میں آپ کو سمپل یہ کہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا توتی بولتا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے ماورائے قانون جیل میں ڈال دیتی ہے, جسے چاہتی ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیتی ہے, جسے چاہتی ہے وہ اسے اقتدار میں لے آتے ہیں, جسے چاہتے ہیں اسے اقتدار سے نکال دیتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے بڑے کاروبار اور بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں جن کے بارے میں اب ساری دنیا جانتی ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. تو انہوں نے اسیسمنٹ اس بات کی ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی یا امریکن پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی. تو ابھی جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچے, لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کچھ شرائط نہیں مانتے تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی. دوسری جانب عمران خان صاحب شرائط مان ہی نہیں رہے. عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا انہوں نے کہا جی 10 سال کا منصوبہ ہے, 2 سال گزر چکے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے ہوئے تو تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں, تو انہوں نے 2 سال کیوں کہے, اس کے اوپر آپ غور کریں. لیکن اس پہ غور کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ اس شخص کی پڑھ کے سناتا ہوں جو زیادہ تر خبریں لے کر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس کے طور پہ دھمکیاں لگانے کا کام بھی جو ہے وہ ان کا دن رات جاری رہتا ہے. تو جناب ہیں تو یہ ایک صحافی, لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بہاف کے اوپر پاکستانی قوم کو بہت دھمکیاں پہنچائی ہیں اور بتایا کہ اب کیا ہونے لگا ہے, ڈنڈے بہت تیز چلنے والے ہیں, مزید ڈنڈا چلنے والا ہے. اور بہت ساری پریڈکشن غلط ثابت ہوئی, بہت ساری صحیح ثابت ہوئی ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ جو اب کہی گئی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پیغام جو ہے وہ یہ پہنچایا گیا کہ ادارہ اپنے چیف کی پالیسی سے چلتا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 95% لوگوں کو آج کی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ڈنگے ہو کر الیکشن نہیں ملے گا, وہ زمانے گئے, گھوڑے دوڑائیں. ذرا چیک کریں آج کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کے لیے جذبات کیا ہیں. 2027 تک تصفیہ نہیں ہوگا, یہ جناب ایک مغیث علی صاحب نے رپورٹ کیا ہے. اور لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, دیکھیں اس میں ہمیں جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2027 کا تذکرہ کیوں آیا اور عمران خان صاحب نے 10 سال کی بات کر کے 2 سال گزرنے کی بات کیوں کی. یہ دونوں چیزیں اس کو آرمی چیف کے ساتھ جوڑ رہی ہیں. آرمی چیف جو ہے ان کا آغاز ہوتا ہے 2022 میں, اور اگر 5 سال پورے کرتے ہیں تو 2027, اور عمران خان صاحب اگر 10 سال وہ پورے کرتے ہیں تو پھر 2032. تو یہ معاملہ اس طریقے سے عمران خان صاحب نے اور یہ محترم جو ہے ان دونوں نے بتایا. لیکن آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ 2027 کا ذکر کیوں آ رہا ہے. 2027 میں یا تو ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی
मजीद 5 साल के लिए आर्मी चीफ की, या फिर एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा, तो उस वक्त तक के लिए तो पॉलिसी यही चलेगी। यानी ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी पॉलिसी है कि इसी तरह चलाओ मामला, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई रूम नहीं है। तो फौज का पॉलिटिक्स के अंदर जो किरदार है वो तो सबके सामने, आपको ढका छुपा तो है नहीं। अब जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट कर दिया गया और एक दम अटैक किया गया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर। मरियम नवाज को एक्टिवेट किया गया। आप गुज़िश्ता 2 दिन से मरियम नवाज के लहजे के अंदर रऊनत देख रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि ये वही रऊनत है जो कुछ अरसा पहले हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब जुल्म और जबर की चक्की बहुत ज्यादा तेज चली है तो उस वक्त एक खामोशी भी थी। अवाम के अंदर जब शदीद तरीन रद्द अमल आया तो उस वक्त एक खामोशी भी थी, लेकिन उसके बाद ये जो रऊनत वाली आवाज है और वो जो लहजा है वो दोबारा से अब आप महसूस कर सकते हैं। इन लोगों को ये यकीन दिला दिया गया है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PMLN को ये यकीन दिलाया गया है कि कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान इधर उधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी PMLN की हुकूमत से अपने आप को अलग नहीं करेगी। ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यकीन दिलाया गया PMLN की हुकूमत को कि ये अच्छे बच्चों की तरह इसी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करेंगे, इनके हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं। नाज़रीन, जो टाउट है उनकी जरूरत बहुत बढ़ गई है और ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट अपने पांव पे वो कुल्हाड़ा मार रही है कि कल को ये बैठ के रोएंगे कि हमने क्या किया। आज भी एस्टेब्लिशमेंट जनरल याया हो, जनरल अयूब हो, जनरल ज़िया हो या जनरल मुशर्रफ हो, उसके किए धड़े के ऊपर किसी किस्म का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। और जो कुछ ये आज कर रहे हैं ये उससे भी बहुत ज्यादा घटिया और बुरे लेवल के ऊपर चले गए। तो टाउटों की जरूरत इतनी बढ़ गई है कि वो अब अवामी शऊर और इज्तिमाई अवामी सोच की तौहीन कर रहे हैं। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाते हुए एक टाउट ने यह भी कहा कि अवाम से भी गलत फैसले हो जाते हैं और उन्हें नहीं माना जा सकता। यानी अवाम का जो गलत फैसला है ना, वो एक ही गलत फैसला है कि उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नकेल नहीं डाली। उन्होंने एक भी डिक्टेटर को जूते मार के नहीं निकाला। अगर लितरॉल की होती ना अवाम ने, तो आज मुल्क में सारा कुछ ठीक होता। बस यही एक अवाम से गलती हुई है, बाकी अवाम ने कभी कोई गलत फैसला नहीं किया। अवाम कायदे आजम के साथ खड़ी हुई, अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ खड़ी हुई, आज अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अवाम हर मजलूम के साथ खड़ी होती है। अवाम दुरुस्त वक्त में जब भी पाकिस्तान का किसी भी मुल्क के साथ कोई फड्डा होता है, अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी होती है। अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है और पाकिस्तान की सलामती के साथ खड़ी होती है। आज भी अवाम दुरुस्त सिमत में खड़ी है और इमरान खान को मुंतखब करके अवाम ने बताया कि जनाब हम यहां खड़े हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये हमेशा गलत सिमत में खड़े हो जाते हैं जाके, और अवाम के इज्तिमाई शऊर की ये तौहीन कर रहे हैं। अब टाउटों के जरिए से ये कहलवाया जा रहा है कि जनाब जमहूर का अवाम का फैसला गलत था, लिहाजा हमने अपना फैसला लाकर बंद कमरों में मुसल्लत कर दिया। अब किसी को अच्छा लगता है लगे, नहीं लगता ना लगे, क्यों जी, ये कैसे हो सकता है? और ये एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म के टाउटों से जो बयानियां बनवा रही है ना, कल को ये लोग पछताएंगे। अवाम को कई दहाइयों पहले इन नौसरबाजों को पहचान लेना चाहिए था, लेकिन देर हो गया, दुरुस्त हो गया। कम से कम लोगों को अब ये जरूर पता है, और चाहे इमरान खान की वजह से पता है, चाहे और बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से पता है, लेकिन लोगों को पता है कि किसने। नादरीन, पाकिस्तानियों की राय पाकिस्तान में सबसे मुकद्दम होनी चाहिए और उन्हीं की राय को तस्लीम किया जाना चाहिए। गो कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और मौजूदा रजीम ने अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया, लेकिन अवाम चाहती क्या है ये मामला अवाम के सामने पहुंचना चाहिए। हमने इस हवाले से एक लेटेस्ट सर्वे किया है, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नंबर 1 ये है कि जो पहला सवाल हमने लोगों से किया, पाकिस्तानियों से, वो सवाल ये है कि आपको किस लीडर पर भरोसा है जो पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल और बहरानों से निकाल सकता हो। ये पहला सवाल है कि आपको किस लीडर पर भरोसा है जो पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल और बहरानों से निकाल सकता है। ये सवाल का लोगों ने क्या जवाब दिया, जरा ये सुनिए आप। इमरान खान, यार वो नडर है, ठीक है, दलेर है, कौम को लेके चलने वाला है, वो इनकी तरह भगोड़ा थोड़ा है, वही जो अंदर है, क्योंकि वो इंसान का बच्चा है, उसके अंदर एहसास है, दर्द है कौम के लिए, लोगों के लिए। और जो यहाँ पे उनको क्या लगे, यहाँ पे कितने कितने दिन हो गए कि बिस्मिल्लाह नहीं की, तो मामला को पूछने वाला नहीं है जी। पाकिस्तान को पैडस बनाना जी, पैडस लोगों की गरीबों की रोटियां छीन के बनाना। इस मुल्क को एक बंदा बचा सकता है, वो है नवाज। वो अगर इस मुल्क को छोड़ देगा ना, ये मुल्क बच जाएगा, नहीं तो ये रुक जाएगा। छोड़ देगा? हाँ जी, अगर इस मुल्क को छोड़ देगा ना तो ये बच जाएगा मुल्क। उन्होंने जेल च पानी पीता है, लीडर तो एक ही मान जाना, रोज लीडर तो नहीं ना जमने, रोज तो खच्चा मार दी। ऑब्वियसली इमरान खान वो एक बेस्ट लीडर है जो हमें इस सूरत हाल से निकाल सकता है, और कोई भी इसके अलावा वो नजर ही नहीं आता। सारे चोर हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं, PDM आप देख लें,
पहले सारे एक दूसरे के पेट फाड़ने पे आए हुए थे, कभी किसी के प्लेट खत्म हो गए थे, कोई लंदन भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, तो उसके बावजूद ये उन सबको जो है ना आगे लेके आ रहे हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट मिली हुई है ओबियसली मैं खुल के कहता हूँ इस टाइम तो कोई भी नहीं है, जो था उसको उन्होंने जेल में रखा हुआ है, जो कि इमरान खान है, सबको पता है। अगर पाकिस्तान के हालात इकोनॉमिकली वाइज ठीक करने हो तो इमरान खान को रिहा करना होगा, और हमें चाहिए कि हम सबको निकलना चाहिए उसके लिए। लीडर है वो तो अंदर है बेचारा, जिसने निकालना था। अभी आपके सामने सारे ही बैठे हुए हैं, तो लुकी छुपी मतलब बात ही नहीं है भैया। इमरान खान निकाल सकता है। इमरान खान पहले भी सही चलता आ रहा है, अब ये हर चीज में वो यानी के टॉप में रहा है। अब ये गंजे आए हैं जब के तब का इन्होंने बड़ा काम खराब हो गया। इमरान खान ईमानदार है, उसे दीन का पता है, दीन से हट के नहीं चलता, और उसका यकीन है, उसे तो लल्ला ही है, और कोई नहीं है, ना हम है ना कोई और है। इमरान खान के अलावा कोई लीडर ही नहीं है यहाँ पे, सारे चोर हैं। सर ये इमरान खान हाल करेगा और कुछ भी नहीं कर सकता। इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब बंदे का, छापी वालों को, रेडी वालों को तंग किया है। क्या गरीब बेरोजगार हैं, क्या लोगों को जो है बच्चे बोल रहे हैं। इनसे उम्मीदें थी शहबाज शरीफ से, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। मैशत बिल्कुल तबाह हो गई है पाकिस्तान की। बस देख लें मार्केट के हालात, देख लें आपके सामने है, कारोबार है नहीं है। वो तो एक ही है इमरान खान, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में हम खुशहाली थी। अब जो देर आपके सामने ये क्या मरीम नवाज आई है, हम पीट रहे हैं। ये खान के अलावा कोई और नहीं कर सकता, खान इसका वाहिद हल है। इमरान खान ये है तो लोगों के दिलों में बसते है। मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है, सही है। खान TLP इमरान खान भाई वो एक ब्रांड बंदा है, ठीक है। सारा दुनिया को पता है इमरान खान ही, और कौन है? इमरान खान ही बचेगा, जो हर चीज है इमरान खान ही। जो भी पाकिस्तान के साथ मुखलस होकर चलेगा वही इसको निकाल सकता है। फिलहाल तो हमें पूरी जितनी भी क़यादत है, हर पार्टी में से कोई भी नहीं नजर आ रही कि मुल्क के साथ कोई मुखलस हो। जैसा कि मोदी आपके सामने है, 15 सालों में वो इंडिया को कहां से कहां ले गया। वो अपने मजहब के ऊपर मुखलस है, अपने मुल्क के साथ। खान साहब को सपोर्टर हैं, और खान साहब ही अगर आएंगे तो वो पाकिस्तान का सोल्यूशन है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई भी पार्टी जो ना पाकिस्तान का हल कर सकती है। मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं है। इमरान खान और वही मुल्क का जो मुस्तकबिल है वही संवार सकता, उसके अलावा कोई भी इस टाइम कोई नहीं संवार सकता। सारी बात है इमरान खान वही हल कर सकता है। फिलहाल तो इस वक्त किसी पे नहीं उम्मीद है, सारे सबने परेशानी किया हुआ है। अभी तो हर बंदा ही परेशान लगा फिर रहा है, तो हम भी कारोबार से भी परेशान लगे फिर रहे हैं। इमरान खान अच्छा लीडर है। पॉलिटिशियन पे कुछ नहीं कह सकता, तकरीबन सब सेम ही हैं, तो सब अपना फायदा सोचते हैं, तो मुश्किल ही आवाम का सोच। इमरान खान हम काम तो कर रहे थे ना, हमें सब कुछ मिल रहा था, हम आराम से रोटी भी खा रहे, हमारा सब कुछ छीन लिया इन लोगों ने। हम ये क्या एक गड्ढा लगा देते तो कुछ चर्च बेच रहे हैं, ऐसे चर्च भी तो ज्यादा ये पाउच बेच रहे हैं हम लोग। सर लीडर तो अगर भुट्टो साहब के बाद अगर देखा जाए तो एक ही लीडर आया है, वो है इमरान खान। तो इसके अलावा तो हम किसी को लीडर नहीं समझते। बाकी तो वो जो लोग हैं, हमारी जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, उनका दौर हमने देखा है। पिछले 40 साल से वो इक़्तिदार में रहे हैं, तो उसके उनकी कारकर्दगी देख ले। मुल्क तो पीछे है, वो तो पकड़ बन के रहे हैं। इमरान खान और बहुत अच्छा लीडर है, ठीक है। इमरान खान जब कोई अच्छा काम करना चाहता था, लोगों ने उसको निकाल दिया। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, हम मदीना रियासत पाकिस्तान को बनाएंगे। क़ौम मुत्तहिदा में जाकर उसने जो भी सवाल जवाब दिए हैं, उस बातों ने हमारा दिल जीत लिया। कोई नहीं कर सकता इसके मसले हल। इधर तो या फौज को आना चाहिए या कोई बाहर का अंग्रेज ही कब्जा कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है सारे का सारा। आपके सामने ही है, जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला था, कौन सा सियासतदान या कौन सा हमारा वजीर जो आगे आया था, वो एक ही इमरान खान है। भाई कारोबार को लेकर के अगर बात की जाए ना बॉस, तो हर लिहाज से ना डिसेबल हुए पड़े हैं कारोबार, कोई चैन चक्कर नहीं है। सुबह से बैठे हैं 10:30-11 बजे के आगे मार्केट ओपन करके बैठे हुए हैं, कोई अता पता ही नहीं है क्या सिस्टम चल रहा है। नवाज शरीफ कर सकते हैं, तो नवाज शरीफ लीडर अच्छा है। वह तो इमरान खान ही है, इसके अलावा मुझे आज तक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं नजर आया बाकायदा आज़म के बाद। वह एक लीडर है कि इमरान खान। इस्लामी हुकूमत आनी चाहिए बस, और कोई नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। ये देखें, ये अड्डों की बहाली, मतलब जो लोग रिस्क कमाने के लिए, हम भी रिस्क कमाने के लिए आए हैं, ठीक है। क्या हाल हो रहा है, गरीबों के मुंह से जो है ना रिस्क खींचा जा रहा है। हम एक बंदे को नहीं चुनते, हम अपने मुल्क को खुद तबाह करते हैं। हम जब एक मुल्क के एक लोग बनेंगे ना, तो फिर मुल्क तरक्की करेगा। इमरान खान
इस वक्त हमें इमरान खान नजर आ रहा है। जो हालात को मद्दे नजर रखते हुए ना खान साहब को लाइक किया, ठीक है, जब तक वो इक़्तिदार में थे कम से कम हम रोजगार अच्छा कमा रहे थे। हल कर सकता है इमरान खान, ये तो सबको ही पता है, इवन तक के सियासी जो दूसरे हुक्मरान हैं उनको भी पता है कि इमरान खान कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ सियासी इख्तलाफात की वजह से उनको नहीं आगे आने दे रहे, तो वो अलग बात है। इमरान खान है वही हल कर सकते हैं, बंदा भी अच्छा है। इसकी हुकूमत में ये देख ले खजल खुआर हो रहे हैं, यही टेंशनें लगी हुई है, कारोबार तबाह कर दिया, जो स्टॉल वगैरह रेडी वगैरह है ये सब खत्म कर दिया, रोजाना यही पर्चे करवा लिए, सब तबाही माल उठा के ले गए, लाखों का नुकसान कर लिया। जी नादरीन, आपने लोगों को सुना। अब लोग जो है वो एक ही लीडर इस वक्त बहुत मकबूल है, वो ऑब्वियस है कि लोगों का टिल्ट वहां पे है। तो उसी लीडर के बारे में 3 सवालात हमने मजीद लोगों से पूछे। एक सवाल हमने ये पूछा कि आप अगले इंतखाबात में, चले एक और टेस्ट ले लेते हैं ना, कि आप अगले इंतखाबात में किसे वोट डालेंगे, नवाज शरीफ को, जरदारी को, MQM को, या PTI को, या किसी और जमात को, फजल रहमान को, ANP को, किसको आप अगले इंतखाबात में किसे वोट डालेंगे? सिंपल हमने लोगों से यह सवाल किया, लोगों का जवाब क्या है ये आप जरा सुनिए। इमरान खान साहब है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है जो लोगों को पता नहीं है, समझना नहीं चाह रहे लोग। इमरान खान को भी लास्ट टाइम भी इमरान खान को दिया था, इस टाइम अगली बार भी इंशाल्लाह इमरान खान को।